Hello students. So today we will learn was ist eine Verb. Okay, so verb structure in German. So this is our lesson number 11 and today we will learn about the verb, how to use the verb and how to conjugate the verb according to the personal pronouns. Okay, so we have two types of verb, regelmäßige Verben and unregelmäßige Verben. So what is difference between regelmäßige Verben and unregelmäßige Verben, that we will learn also in today's lesson. So lesson is was ist eine Verb. Okay, structure of a verb. So these are the learning objective. Okay, what are regular and irregular verbs? Okay, so now we have this one sentence is ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball means I play football. Okay, so a verb describe an action. जो भी आप एक्शन करते हो उसको जो वर्ब है वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, जो भी आपके एक्शंस होते हैं उन सबको जो है वो जो डिस्क्राइब करते हैं वो एक वर्ब होती है उसमें. द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द वर्ब. जो एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब वर्ब के बिना जो है आपके एक सेंटेंस नहीं बन सकता एक हिसाब से. So verb structure, so infinitive form of the verb. So now we have this verb lernen. Lernen means to learn. So this is a infinitive form of the verb. So this is the main verb. Okay, so this verb we have to conjugate according to the personal pronoun, and this is a regular verb. So len, so en is the ending of the verb. Okay, so regular verb end with en or n. So en is the ending of the verb. So before ending, these four alphabets are the stem of the verb. So these four are the stem of the verb. So len, learn, stem of verb stem means stem of verb. Then en or n is the endung. Endung is the ending. So these endings are changed according to the personal pronoun in regular verbs, in regelmäßige Verben. So now we have this some verb. These are the regular verb and one here irregular verb. Heißen to be called, sprechen to speak, kommen to come, wohnen to live, hören to hear, machen to do, spielen to play, lernen to learn. So these are the some verbs which we will learn today, or how to conjugate these verbs according to the personal pronoun. So verben, so we have this two type of verbs, regular verbs or irregular verbs. So regelmäßige Verben is regular verb, the first one. Okay, so regular verbs also known as schwache Verben. Okay, schwache Verben means this is weak verbs. So these verbs are really easy to conjugate according to the personal pronouns. And then stem of the verb, the verb stem. Okay, so verb stem does not change here. Okay, the stem of the verb doesn't change here in regular verbs. Then we have this unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben is irregular verbs. Irregular verbs में क्या होता है? Also known as starke Verben. Starke Verben, strong verbs. इसमें क्या होता है? Verb stem change in certain cases. तो stem of the verb जो होता है, मतलब ending के पहले के जो alphabets होते हैं, जो भी letters होते हैं, उनमें भी changes होता है, वो भी according to the personal pronoun. जब भी हम उसकी conjugation करते हैं तो irregular verb में उसमें भी changes होते हैं, पर regular जो verbs होती हैं उसमें कोई changes नहीं होता है stem of the verb में. Only endings change according to the personal pronoun. So here are some regular verbs and irregular verbs. Regelmäßige Verben. So which are the regular verbs? Heißen, wohnen, machen, spielen, studieren, arbeiten. Heißen, wohnen, machen, spielen, studieren, arbeiten. So these are the regular verbs, and now we have this unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben is irregular verbs.
सो स्लाफन, एसन, जेहन, नेमन, ट्रेफन, फारन. Okay, schlafen to sleep, essen to eat, sehen to see, nehmen to take, treffen to meet, fahren to drive. So these are the regular verbs and irregular. This is only for example, but there are many more verbs, regular or irregular verbs. So these are the verbs. Now the conjugation of the verb in present tense. Okay, so verb conjugation in presence. So today we will learn how to conjugate the verb in present tense with personal pronouns according to the personal pronouns. So in regular verbs, stem of the verb, okay, जो verb stem doesn't change. The stem of the verb जो ending के पहले के जो भी letters होते हैं उनमें कोई changes नहीं होता है, पर एंडुंग मीन्स एंडिंग जो है वो चेंज होती है, डिपेंड्स ऑन सिंगुलर और प्लूरल एंड द पर्सन. चेंज होता है एंडिंग, लेकिन किसके हिसाब से, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है या फिर पर्सन के हिसाब से, मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से वो चेंज होता है. नाउ वी हैव दिस सिंगुलर एंड द प्लूरल, हाउ इट्स चेंज. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट पर्सन इश. ठीक है, इसके साथ में क्या होता है, स्टीम ऑफ द वर्ब, एंडिंग में क्या आएगा, ई. सो एंडिंग अगर ई एन पे अगर वर्ब जो एंड हो रही है तो इंस्टेड ऑफ ई एन यू हैव टू यूज ई ओनली. किसके साथ में, इसके साथ में, फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में. और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ में, मतलब कि वियर मतलब कि हम, उसमें स्टीम ऑफ द वर्ब, वर्ब स्टेम के साथ में एंडिंग क्या होगा, ई एन आपको यूज करना है. मतलब कि आपको इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. मतलब वियर के साथ में, वी के साथ में जो है हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज होती है, उसमें कोई कॉन्जुगेशन करने की जरूरत नहीं होती है हमें. देन वी हैव दिस सेकंड पर्सन सिंगुलर डू. इनफॉर्मल, इसमें क्या होता है, स्टीम ऑफ द वर्ब, द वर्ब स्टेम प्लस एस टी, जो एंडिंग के पहले के जो लेटर्स है उसके साथ में एंडिंग में आपको एस टी यूज करना है, यानी कि इंस्टेड ऑफ ई एन यू हैव टू यूज एस टी. और इसी के प्लूरल के लिए सेकंड पर्सन इनफॉर्मल, प्लूरल के लिए क्या हो जाए, ईयर मतलब कि दे, सॉरी ईयर मतलब कि यू ऑल. ठीक है, यहाँ पे स्टीम ऑफ द वर्ब, इसके साथ में एंडिंग में क्या हो जाएगा, टी, यानी कि इंस्टेड ऑफ ई एन यू हैव टू यूज ओनली टी व्हेन यू कॉन्जुगेट द वर्ब विथ ईयर. नाउ वी आर द सेकंड पर्सन सिंगुलर जी, मतलब कि आप, इसका हो गया तुम, इसका जी का मतलब हो गया आप, दू का तुम, जी का आप. तो जी के साथ में क्या होता है, स्टीम ऑफ द वर्ब के साथ में एंडिंग में आपको ई एन यूज करना है. मतलब कि अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के साथ में आपको इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आपको यूज करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. मतलब जी के साथ में इन्फिनिटिव फॉर्म जो है वो यूज़ कर, मतलब कि जैसे कि हम वियर के साथ में इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही जी के साथ में इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ होगा. और इसके प्लूरल में भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा. बिकॉज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मल के लिए हम दोनों के लिए जी यूज़ करते हैं, तो कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब जो है वो भी आपकी सेम रहेगी. फिर हमारे पास में थर्ड पर्सन सिंगुलर एर, जी, एस, ही, शी, इट. इसमें स्टीम ऑफ द वर्ब एंडिंग ई एन की जगह पे आपको यूज करना है टी, मतलब कि स्टीम ऑफ द वर्ब के साथ में एंडिंग में आपको टी यूज करना है. और प्लूरल के लिए क्या होगा, जी मतलब कि दे, और यहाँ पे स्टीम ऑफ द वर्ब के साथ में ई एन आपको यूज करना, मतलब यहाँ पे भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको यूज करना है. मतलब कॉन्जुगेशन जब भी आप वर्ब की करोगे तो उसमें वियर, जी और जी, इनके साथ में हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आपको यूज़ करनी है, उसमें कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं होगा. और मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इस जी में भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इस जी में भी आपको कन्फ्यूज़न कि जी जो है वो हम 4 जगह पे यूज़ कर रहे हैं. तो फॉर्मल के लिए जो जी है जो हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब जैसे कि आप होता है, और ये हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, चाहे इस जी की कोई भी पोजीशन हो, हमेशा जो ये जी है ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएंगे दोनों.
जब भी आप कभी करोगे। और जब भी फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है शी जो होता है, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई फेमिनिन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी जी यूज़ होता है। अगर आप इस बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस अगर आप जी यूज़ करते हैं तो एस कैपिटल होगा, अदरवाइज ये एस जो हमेशा है स्मॉल में ही आएगा, लेकिन फॉर्मल वाला हमेशा कैपिटल में होगा। और ये जी अगेन है, ये प्लूरल का, डिपेंड ऑन सेंटेंस अगेन, इसका जी का मतलब होता है दे, और इसमें भी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ये कैपिटल आएगा, अदरवाइज स्मॉल में ही यूज़ होगा बाकी सेंटेंस के अंदर। तो ये नॉर्मल जो डिफरेंस है वो सेंटेंस जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए आपको सिंगुलर सेंटेंस यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाना है आपको सेंटेंस फेमिनिन के लिए, या फिर आपको थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप जी यूज़ करेंगे उसके लिए, और वर्ब की कॉन्जुगेशन उसी के हिसाब से आपको यूज़ करनी होगी। अब जैसे कि वर्ब है हमारे पास में माखन, ये है रेगुलर वर्ब है, यानी रेगुलर में के वर्ब मीन्स रेगुलर वर्ब है माखन। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ करना। तो इसकी जो कॉन्जुगेशन है, हाउ टू कॉन्जुगेट दिस वर्ब अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारे पास में पहले इश मार्क है, एंडिंग क्या हो गया ई, तो इंस्टेड ऑफ ई एन व्हाट वी आर यूजिंग ई, जो हमने लास्ट टेबल में करा था, वियर के साथ में वियर माखन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, एंडिंग इज ई, एंडिंग इज ई एन, मतलब यहाँ पे इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब वी आर यूजिंग व्हेन वी आर कॉन्जुगेटिंग द वर्ब विथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। नाउ वी आर दिस सेकंड पर्सन सिंगुलर इनफॉर्मल, डू मार्क्स, यहाँ पे ई एन की जगह पे एस टी, so ending change here with do, so instead of en you have to use st ending when you conjugate the verb with do, यानी कि तुम। फिर ear, तुम सब, you all, तो ear के साथ में marked, so instead of en you have to use t when you conjugate the verb with ear। now we are with the formal z, मतलब कि आप z माखन, again you have to use infinitive form of the verb, and for z you all, इसके लिए भी infinitive form of the verb you have to use। now we are third person singular, air z s, he she it, air marked, z marked, s marked, तो तीनों के साथ में कॉन्जुगेशन है वो सेम ही होगी, और यहाँ पे भी t हमें यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ en, और g के साथ में प्लूरल दे, इसके साथ में इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव टू यूज। नाउ हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ब, ओके, सो आई इश मार्क है, डू मार्क्स, जी माखन, एर जी एस मार्क्ड, वियर माखन, ईयर मार्क्ड, जी माखन, जी माखन, ठीक है। सो वर्ब हो गया माखन मीन्स टू डू। Now we have this next verb spielen. Spielen means to play. Spielen, to play, again a regular verb. So today we will learn only the conjugation of regular verbs. So ending will be the same when you conjugate the verb according to the personal pronouns. So is spiele, ending e, do spiels, ending st, z spielen, infinitive form of the verb, as z s spielt, again t, we are spielen, infinitive form of the verb, e spielt, t, z spielen, z spielen। सो रेगुलर वर्ब की जब भी आप कॉन्जुगेशन करोगे तो एंडिंग जो है ई, एस टी, ई एन, टी, ई एन, टी, ई एन, ई एन, यही रहेगी इरेगुलर वर्ब में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इरेगुलर वर्ब में भी यही होगा, लेकिन उसमें क्या होता है स्टीम ऑफ द वर्ब, मतलब कि ये हो गया स्टीम ऑफ द वर्ब हमारा एस पी आई ई एल, ये हो गया स्टीम ऑफ द वर्ब। तो इसमें भी चेंजेस होते हैं सर्टेन केसेस के अंदर, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट रेगुलर वर्ब में यही होगा। ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे कि अब हमारे पास में है जो भी वर्ब जो है वो अगर एसेट पे एंड हो रही है, यानी स्टीम ऑफ द वर्ब जो है एसेट पे, जेड पे या फिर एस पे जो एंड होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि इफ़ वर्ब स्टैम एंड्स इन एस, एसेट और जेड,
अगर स्टीम ऑफ द वर्ब जो है वो अगर एंड हो रहा है एस पे या फिर एस पे और जेड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन द एंडिंग, ओके, इन द एंडिंग मीन्स इन द एंडिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड वर्ब एस टी बिकम्स टी। जहाँ पे भी एस टी हमें यूज़ करना है एंडिंग के अंदर, वो क्या बन जाता है, टी बन जाता है। और एस टी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डू के साथ में। जब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो हम एस टी की जगह पे टी हम जो यूज़ करते हैं। उसके बाद में वर्ब है हाइसन। वर्ब हाइसन, हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, इस हाइसन डू हाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टीम ऑफ द वर्ब कहाँ पे एंड हो रहा है, एस के ऊपर। सो इस हाइसे डू हाइस्ट, जी हाइसन, एस जी एस हाइस्ट, फिर वी हाइसन, ए हाइस्ट, जी हाइसन, जी हाइसन। Now we have this verb tansen means to dance. So again stem of the verb end at z means set. इसमें भी सेम होगा, एस टी की जगह पे ओनली टी, बाकी सब में सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। सो इस टांस से डू टांस्ड, जी टांसन, एस जी एस टांस्ड, वी टांसन, ई टांस्ड, जी टांसन, जी टांसन, ओनली चेंजेस विद डू। Now one more special case we have when you conjugate the regular verb. If stem of the verb ends in D or T, अगर stem of the verb जो है अगर T और D पे अगर end हो रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर ST become EST और T becomes ET। यानी कि जब do सेकेंड पर्सन सिंगुलर इनफॉर्मल के साथ में आप कंजुगेट करते हैं तो एस टी हम यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे ई एस टी हमें यूज़ करना पड़ेगा एंडिंग में। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम टी यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे हमें ई टी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास में वर्ब है आर्बाइटन मीन्स टू वर्क, वार्टन टू वेट, आंटवार्टन मीन्स टू आंसर। सो दीज वर्ब्स स्टीम ऑफ द वर्ब एंड एट टी, अगेन हियर टी, again here T, and there are many more verbs which end at D also. So here is the conjugation of the verb arbeiten to work. So ich arbeite, du arbeitest. So instead of st we have used est because here stem of the verb end at T. Sie arbeiten, sie es arbeitet. So instead of T we have used ET. Wir arbeiten, ihr arbeitet, again here instead of T we have used ET, Sie arbeiten and Sie arbeiten. So that you have to memorize, that you have to know, that you have to fix in your mind कि अगर stem of the verb T और D पे अगर end होता है तो do के साथ में हमें EST, as yes के साथ में हमें ET और ear के साथ में हमें ET जो ending है वो हमें use करना है। अब छोटी सी एक एक्सरसाइज है दिस यूबुम। सो यू हैव टू कॉन्जुगेट दीज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन प्रोनाउन और नाउन। मुकुल के साथ में कॉन्जुगेशन क्या होगी आर्बाइटन की, दू के साथ में, ईयर के साथ में, इश्क के साथ में और मुकुल के साथ में। सो दैट यू हैव टू कॉन्जुगेट द वर्ब योरसेल्फ एंड राइट इट इन अ नोटबुक। सो यू विल लर्न और you will memorize once you do it yourself, then it will be easy to remember yourself. So this is a small exercise for you that you have to learn and write in your notebook. So that will be correct or not, that you can check like वापस वीडियो में जाकर के पीछे आप उसको चेक कर सकते हैं अपने कि आंसर्स इसके क्या होंगे और क्या नहीं। लेकिन आंसर मैंने पहले ही लिख दिए तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन चेक योर आंसर्स हियर। सो arbeitet for the first one, marks for the second one, studier for third one and yard for fourth one. So these are the answer. So how many was correct? All. Okay, good, wonderful. Okay, so thank you so much class, and in this lesson this is all. In next lesson we will learn how to conjugate the irregular verbs. Irregular verbs unregelmäßige Verben, how to conjugate and where the stem of the verb change when you conjugate the verb with
personal pronouns. Till then, bye bye, take care, see you.